NISM Model 15 Research Analyst, Chapter 1 Introduction to Research Analyst Profession. Learning Objectives. After studying this chapter, you should know about the role of a research analyst, primary responsibilities of a research analyst, basic principles of interaction with companies and or clients, important qualities that are desired in a research analyst. So basically this chapter will give you an overview about each and every aspect that a research analyst is expected to do. So बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं जो एक रिसर्च एनालिस्ट को करने होते हैं, और ये सारे काम, ये सारी क्वालिटीज़ एक रिसर्च एनालिस्ट की आपको पता चलेंगी आफ्टर यू कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So let's start with the first point, that is the primary role of a research analyst. Imagine you have decided to buy a phone. So what is the process that you would follow to buy that particular phone? हम लोग अगर कोई भी फ़ोन खरीदने जाते हैं, so there is a particular process that we follow. There is a particular research that we follow behind any purchase. हम लोग ये देखेंगे कि फ़ोन की क्वालिटी कैसी है या हमें किस फीचर की फ़ोन चाहिए. So जो फीचर्स हमें चाहिए, लेट्स सपोज हमें एक 6 इंच का फ़ोन चाहिए, देन हमें उसकी रैम की रिक्वायरमेंट है. द रैम शुड एटलीस्ट बी 3 GB और 4 GB डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट. दैन हमें एक हार्ड डिस्क की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है. द हार्ड डिस्क शुड एटलीस्ट बी 64 GB. सो 64 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए. So these are the minimum requirements that you are expecting out of a particular phone. So for the price range decided, you would shortlist a set of brands, compare various technical specifications, and depending upon what factors are important to you, whether it's the battery life or the megapixel of the camera, you take the decision. So finally ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि हमें कौन कौन से फ़ोन परचेस करने हैं. यहाँ पे हम लोग हो सकता है कुछ फ़ोन को शॉर्टलिस्ट करें, लाइक हमने एक ओप्पो के फ़ोन को शॉर्टलिस्ट किया जो हमें पड़ रहा है 15,000 की रेंज में. देन देयर इज़ अ वीवो फ़ोन जो बिल्कुल सिमिलर फीचर्स हैं एंड दैट इज़ कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 17,000. उसके बाद हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस आते हैं और ये सारे ऑप्शंस अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंपेयर इज, we are going to compare the quality, we are going to compare the features of all these different brands and the prices of all these different brands, and finally we will conclude that which phone we should buy. हमें कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, डिसीजन हम लोग लेंगे. एंड जब हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं, सो वी आर एक्टिंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट या वी आर एक्टिंग एज अ रिसर्चर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. हम लोग इस फील्ड में कि कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए, वी आर एक्टिंग एज अ रिसर्चर. So this is the very similar process, this is a very similar structure that we follow during research analysis. हम लोग जब स्टॉक्स का रिसर्च एनालिसिस करते हैं, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिसर्च एनालिसिस करते हैं, so this is the very similar process which we follow. There is a research collection of the information from various sources and then the analysis, processing of the data to take the decision. तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया. हमने सबसे पहले रिसर्च करी कि हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि कौन से मोबाइल के क्या क्या फीचर्स हैं, हमने उस डेटा को प्रोसेस किया और फाइनली हमने एक डिसीजन ले लिया कि हमें ये पर्टिकुलर मोबाइल परचेस करना है. तो बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग मोबाइल के लिए भी फॉलो कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वाइल वी वांट टू परचेस अ कार, एंड द सेम प्रोसेस वुड बी फॉलोड व्हेन वी नीड टू परचेस एनी इक्विटी शेयर or any investment instrument. There are 3 different types of analysts there in the market. First is the sell side analyst, then the buy side analyst, and then the independent analyst. Let's start with the buy side analyst. Buy side analyst एक simple से analyst होते हैं जो हमें usually एक long term perspective बताते हैं about any particular company. तो हमें कौन सी कंपनी को परचेस करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट, हमें कौन सी कंपनी में अपनी एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करनी है, ऐसा कौन सा शेयर है जो हमें खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टेड बाय द बाय साइड एनालिस्ट. तो यूजुअली वो रिसर्च एनालिस्ट
who are working with the mutual fund companies, the hedge fund companies, the pension funds, the portfolio managers. These all purchase these stocks for the long run and they sell the securities for their own investment accounts और on the behalf of their clients. तो ये लोग purchase and sell करते हैं on behalf of the clients usually. Second, we have the sell side analyst. They typically publish the research reports on the securities of the companies or industries with specific recommendation to buy, hold and sell. So basically ये कौन से एनालिस्ट होते हैं? ये वो एनालिस्ट होते हैं who are trading side analyst. तो ये लोग ट्रेडर्स होते हैं. ये यूजुअली आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताते हैं कि ऐसी कौन सी स्टॉक्स है जो हमें बाय करनी है, ऐसी कौन सी हैं जो हमें शॉर्ट सेल करनी है, कौन से स्टॉक्स है जो हमें होल्ड करके चलने हैं. नाउ अगर किसी कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसके ऊपर क्या होनी चाहिए. सो बेसिकली दी सेल साइड एनालिस्ट आर ट्रेड रिसर्चर्स. सो दीज बेसिकली गिव यू एडवाइस रिलेटेड टू ट्रेडिंग. हमें ट्रेडिंग कौन से स्टॉक्स में करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए. सो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एडवाइस इज बीइंग गिवन बाय दी सेल साइड एनालिस्ट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, so these long term investment advices are suggested by the buy side analyst. Then there is a third type of analyst as well. We also have independent analysts. They work for the research originators or the boutique firms separate from the full service investment firms and sell their research to others on the subscription basis. तो ये इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, आप इनको एज अ फ्रीलांसर समझ सकते हैं. सो दीज आर द फ्रीलांसर्स जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और इनका मेन पर्पस होता है कि मार्केट में जो भी अलग अलग एडवाइसेस हैं वो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाएं. सो देयर क्लाइंट्स कुड बी इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, फंड मैनेजर्स एक्सेट्रा. सो दे कैन बी मल्टीपल क्लाइंट्स of these people, of these analysts, and these analysts work as the freelancers. They work as an independent analyst, independent researcher. They also provide customized research reports. अब ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पाती. सो यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये बड़ी कंपनीज जनरलाइज्ड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं विच इज़ जनरलाइज्ड फॉर एवरीबडी. Now these people they provide the specialized research reports or the customized research reports to their specific clients as well. अगर कोई एक specific client है जिसको सिर्फ banking segment की companies के research reports की requirement है, they will provide the research report of banking segment. कुछ clients है जिन्हें सिर्फ FMCG sector में interest है, कुछ clients है जिन्हें सिर्फ hospitality में interest है, कुछ clients है जिन्हें pharmaceutical sectors में interest है. So for the specific clients they will provide the customized research reports. Primary responsibilities of a research analyst. So what is that a research analyst is expected to do? क्या क्या responsibilities उस particular research analyst की होती हैं? So basically हम लोग जब भी research की बात करते हैं, this term research, and when we talk about this research in equity market, so this research actually consists of three different alphabets. One is E, second is I, third is C. So this stands for economic, industry and company analysis. इसे हम लोग EIC approach के नाम से जानते हैं. So this EIC approach means economic analysis, industry analysis and company analysis. So basically ये हमारे 3 chapters हैं, 4 चैप्टर्स हैं जो आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे या आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे. सो दीज आर 3 or 4 डिफरेंट चैप्टर्स विच आर देयर इन द बुक. सो इकोनॉमिक एनालिसिस इज एन इंडिविजुअल चैप्टर, इंडस्ट्री एनालिसिस इज अगेन एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, कंपनी एनालिसिस के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं. वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, अनदर इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एक्चुअली टॉक अबाउट दी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, लाइक कंपनी की क्वालिटी हम लोग कैसे जज कर सकते हैं. Quantitative factors talks about the numbers. So we are going to discuss about these terminologies individually. So let's start with this term E. E stands for understanding the economy. तो इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है? इकोनॉमी से हमारा मतलब है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो इकोनॉमी में
इंक्लूड होती हैं. देयर आर मेनी मोर टर्म्स, देयर आर मेनी मोर टर्मिनोलॉजीज. ये पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर इन इटसेल्फ. तो ये पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग कवर करने वाले हैं. दिस इज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक रिसर्चर को करना क्या होता है. सो एक रिसर्चर को इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस करना होता है, एंड देन कंपनी एनालिसिस करना होता है. So economy में we have covered the national income, inflation, interest rate and unemployment rate. Then we have understanding the industry. Different industries face different challenges and opportunities. Their growth drivers could be significantly different. Accordingly, the research analysts need to understand thoroughly and regulatory environment prevalent in the industry. So research analyst के जो काम होते हैं, that includes understanding the complete industry, the regulatory environment of that particular industry, the business models, the competition, operating factors, sensitivity of demand to price changes, consumers behavior, etc. So these are some small points. ये सारे points हम लोग cover करने वाले in the chapter industry analysis. बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की हैं. तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है. दिस फर्स्ट चैप्टर इज वेरी स्मॉल चैप्टर एंड दिस जस्ट कवर्स द ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट. थिर्डली, द रिसर्चर विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम कंपनीज को समझेंगे तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनीज किस तरीके से वर्क करती है, वॉट इज द ट्रेंड दैट ईच इंडिविजुअल कंपनी फॉलोज, एंड कौन सी कंपनी को हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए और किस कंपनी में हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए. सो लेट्स से हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं. द्रविड़ और सहवाग के एग्जांपल से हम लोग इसे समझते हैं. सो इफ आई आस्क यू हु इज द बेटर बैट्समैन, द्रविड़ और सहवाग, सो सम ऑफ यू हु आर फैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट मैचेस विल गो विद द्रविड़. कुछ लोग जो T20 के फैन हैं, वनडे मैच के फैन हैं, they would go with Sehwag. So Dravid and Sehwag both are great batsmen, but the two have very different playing strategies. दोनों की strategy बहुत अलग है. The qualitative understanding is more about understanding why the particular business is better, and when compared with its peers, what are the strengths and weaknesses of the business model, how qualified and capable the management is, and so on. तो जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है हम लोग उस पर्टिकुलर कंपनी की क्वालिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या क्या थ्रेट्स हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उस कंपनी को, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क दैट द कंपनी कैन फेस इन फ्यूचर. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. लाइक उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो अगर उसका सेगमेंट सपोर्ट नहीं भी करेगा, मैनेजमेंट के पास ऐसे तरीके हैं कि वो उस कंपनी को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं. सो देयर आर वेरियस क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट वी विल कवर इन दी चैप्टर. उसके बाद वी हैव द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एज वेल. क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मतलब दे टॉक अबाउट द नंबर्स, दे टॉक अबाउट द मैथमेटिकल टर्म्स. सो क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग वुड बी मोर मैथमेटिकल इन नेचर. तो कितना प्रॉफिट कोई कंपनी कर रही है, कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, व्हाट इज the margin that the company is targeting and what is the margin that the company is actually able to make out. तो ये बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं जो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, हम इन सबको कैलकुलेट करना सीखेंगे. एंड आफ्टर वी अंडरस्टैंड दिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वी विल फाइनली एनालाइज कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है. Then basic principles of interaction with the companies and clients. So basically when we talk about understanding any particular company or when we talk about doing research about any particular company, there are various ways to do the research. बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. These days internet has made everything very easily available. आपके पास हर एक चीज़ आज की डेट में इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो जब हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, we get the results, we get the outputs very easily. Now if I'm searching about a company, if I'm researching about a company, now these are two different terms. When I'm searching about the company, I will only get the data which is available. When I'm researching about the company,
I will have to understand, I will have to analyze, I will have to go to a particular decision of the company. तो जब हम लोग सर्च कर रहे हैं, we are using the internet, so it is a very good source of data. हम लोग सारा डेटा इंटरनेट से ले सकते हैं, लेकिन द प्राइमरी प्रॉब्लम इज कि इंटरनेट से जो भी हम लोग डेटा लेंगे दैट इज नॉट सफिशिएंट. सो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डेटा, दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन दिस इज नॉट अ सफिशिएंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी की रिसर्च कर रहे हैं, सो दी फेस टू फेस इंटरैक्शन, दी वन टू वन इंटरैक्शन इज़ वेरी नेसेसरी. और आज हम लोग कितने भी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ये वन टू वन रिसर्च एंड फेस टू फेस इंटरैक्शन का देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट. सो मैनी अ टाइम्स वी थिंक कि इंटरनेट पे व्हेन वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, व्हाई शुड वी गो एंड मीट पीपल. बट देन जब तक आप उस कंपनी के बारे में डीप नहीं समझते हैं, जब तक आप उसके मैनेजमेंट से नहीं डिस्कस करते हैं, जब तक आप उसके क्लाइंट से नहीं डिस्कस करते हैं, तब तक आप उस कंपनी को अंदर से नहीं जान पाएंगे. सो देयर आर टू डिफरेंट पीपल whom we are going to meet, whom we are going to interact. तो जिनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, जिनसे कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज पीपल आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो एक तो हमें कंपनी के मैनेजमेंट से मिलना है और हमें कंपनी के क्लाइंट से मिलना है. द पीपल हु आर द एंड क्लाइंट्स, हु आर द पीपल हु आर यूजिंग दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. तो जो लोग वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वही लोग हमें बता पाएंगे कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है या वो प्रोडक्ट कितना बुरा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरैक्टिंग विद द कंपनी. तो इंटरैक्टिंग विद कंपनी मतलब इंटरैक्टिंग विद कंपनीज मैनेजमेंट एंड इंटरैक्टिंग विद द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज. हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं. तो जब हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय से इंटरैक्ट करते हैं, सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच वी कम टू नो, जो हमें इंटरनेट पे कई बार नहीं मिलती है. तो हमें हो सकता है पता चले कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी. या ये हो सकता है हमें पता चले कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे टाइम सपोर्ट करती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है सो दिस कंपनी स्टैंड्स फॉर द एम्प्लॉयज़. सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स जो आपको बताएगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी. तो अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर रही है, सो दिस कंपनी कैन गो वेरी लॉन्ग वे इन दी फ्यूचर. तो बहुत अच्छे से ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है बिकॉज द एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो स्टैंड विद द कंपनी व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. अब जैसे इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन है, जब कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को तब छुट्टी दी जब एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट थी, तो एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू वर्क, विल बी रेडी टू वर्क फॉर द कंपनी व्हेन द कंपनी नीड्स. तो जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो शायद वो एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो कम एंड वर्क विद द कंपनी, दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट द कंपनी. और क्योंकि कंपनी ने उनकी हेल्प की थी, ये एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के लिए स्टैंड लेंगे एंड दे विल वर्क विद द कंपनी इवन व्हेन द कंपनी इज नॉट एबल टू पे द सैलरीज. सो ये एम्प्लॉय इंटरैक्शन अगेन इट्स वेरी नेसेसरी. मैनेजमेंट से भी हमें एक इंटरैक्शन करना बहुत ज़रूरी है. मैनेजमेंट से इंटरैक्शन करके हम लोग ये जान सकते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द कंपनीज फ्यूचर. क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पता है लेकिन दीज पीपल आर थिंकिंग अबाउट द कंपनी. हो सकता है ये लोग कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, हो सकता है ये लोग कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूजुअली इंटरनेट पे न्यूज़ में आपको नहीं देखने को मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट यू कैन कम अक्रॉस only when you talk with the management, only when you interact with the management personally. There can be some risk associated with some investment, there can be some opportunities in the sector. तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट पर्सनली बहुत अच्छे से बता सकता है और मैनेजमेंट हमें ये सारी डिटेल्स एक बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेगा विथ रीजंस. नाउ व्हेन वी इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट, देयर आर मेनी पॉइंट्स व्हिच दे कैन टेल अस इन अ वेरी रोजी वे. तो वो बहुत अच्छे से हमें एलैबोरेट करके और अच्छे से हमें बता सकते हैं वो वाले पॉइंट्स, लेकिन कई बार वो उन पॉइंट्स में बहुत सारे रिस्क वाले फैक्टर्स को छुपा देते हैं. दे ट्राई टू हाइड द रिस्क फैक्टर्स और जो हमें भी समझ नहीं आता है. सो हियर इज वेयर द रोल ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट कम्स इन. तो रिसर्च एनालिस्ट का रोल है कि समझे कि कहाँ कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो रिस्की है कंपनी के लिए, जो कंपनी को आगे चल के एक डाउनफॉल में ले जा सकते हैं या एक बहुत बड़ी रिस्क में ले जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें समझना और इन पे क्रॉस क्वेश्चन करना is again one of the qualities which we expect from a research analyst.
Finally, the client, the end users of the company are the ones who are using the products of the company. तो जब भी हम किसी कंपनी की एक्चुअल क्वालिटी समझना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, उसका क्या फीडबैक है, तो उसका एक्चुअल फीडबैक हमें मिलेगा फ्रॉम द एंड यूजर्स, फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स ही वो लोग हैं जो हमें बता सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है क्या, प्रोडक्ट्स में कुछ एड ऑन्स की रिक्वायरमेंट है, so is there any improvement which is required in the product which the company is selling. So all these things you can easily understand when you interact with the clients. अब जब आप इन लोगों से interact करोगे, so how should you interact? So there is a proper process which you should follow while interacting. So this is what we are going to understand now. First is pre-meeting research. Pre-meeting research का मतलब है कि जब भी आप लोग एम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से या क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, सो देयर इज सम रिसर्च विच इवन यू शुड डू। तो आपको भी कुछ रिसर्च करके जाना पड़ेगा। लाइक आपने देखा होगा कि जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे नीड टू आस्क। सो उनके क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनके क्वेश्चंस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। नाउ वो लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? बिकॉज दे नो मैनी थिंग्स अबाउट द कंपनी। तो वो लोग जब मैनेजमेंट से मिलने आ रहे हैं, वो लोग जब क्लाइंट से मिलने आ रहे हैं, तो अपनी खुद की रिसर्च करके आ रहे हैं। तो जब भी आप मैनेजमेंट से मिलने जाएंगे, तो आपका खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने गए हैं और आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अगर आपने उनके पीछे रिसर्च की है कि दे ट्राई टू मेक द कोविड वैक्सीन बट वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहे, और वो लोग उसका कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो लोग उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं आपसे, और वो लोग अपने एक अलग ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि हम लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन बना रहे हैं, हम लोग इन सारी मेडिसिन पे वर्क कर रहे हैं। सो दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द फेलियर्स, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स विच दे आर कवरिंग. So now they are actually talking to you about the rosy picture of the company but not about the negative points of the company. तो ये सारे क्रॉस क्वेश्चन आपको करने होंगे कि हाउ अबाउट द प्रोजेक्ट विच गॉट फेल्ड. जब आप लोगों ने कुछ ट्राई किया करने का, तो आप लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाए, सो उसके ऊपर व्हाट इज द फ्यूचर एस्पेक्ट, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर इन द सेम प्रोस्पेक्ट, इन द सेम सिनेरियो. तो ये क्रॉस क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव डन a very good research before the meeting. तो जब भी आप एक रिसर्च करने जाते हो, तो आपको एक प्री मीटिंग रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, द इंडिपेंडेंस एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द व्यू. अगेन ये हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल्स हैं. तो मूवीज़ में आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम लोग कुछ एक डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन के पहले हमें न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर आप कोई भी कोर्ट केस देखोगे, आपने कोई मूवी में या किसी सीरीज़ में कोई एक कोर्ट केस देखा है, तो वहाँ पे हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो जज होता है दैट हैज़ द न्यूट्रल व्यू. वो कभी भी ये सोच के नहीं आ सकता कि दिस पर्सन इज़ अ कल्प्रिट या दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग. तो अगर वहाँ पे कोई भी केस चल रहा है, तो द जज हैज़ टू बी न्यूट्रल एंड द जज हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट. वो अपना एक डिपेंडेंट व्यू या वो अपना एक बायस्ड व्यू नहीं बना सकता कि हो सकता है केस में ऐसा हो या हो सकता है इस पर्सन ने ऐसा किया हो. He will have to take the decision depending upon the proofs that he are getting. जो भी सबूत वहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, उन सबको देखते हुए, उन सबको समझते हुए ही उस पर्सन को डिसीजन लेना होगा. बिकॉज हर एक डिसीजन के पीछे देयर इज अ प्रूफ विच इज रिक्वायर्ड. तो बिल्कुल वैसे ही जब हम भी किसी कंपनी की रिसर्च करने जाते हैं, तो हमें भी अपना व्यू बिल्कुल न्यूट्रल रखना होता है. हमें नहीं सोच के चलना है कि ये कंपनी बहुत ख़राब है या ये कंपनी बहुत अच्छी है. बिकॉज अगर हमने बहुत अच्छी सोच के गए, तो शायद हम लोग बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. या अगर हम लोग बहुत ख़राब सोच के गए, तो जब रिसर्चर या जब कंपनी का मैनेजमेंट हमें खुद अपने पॉइंट्स बता रहे हैं, हम लोग क्रॉस क्वेश्चन एक गलत वे में पूछेंगे. सो वी डू नॉट हैव टू मेक अवर ओन व्यू. हमें अपनी प्री मीटिंग रिसर्च बिल्कुल करनी है, बट ये प्री मीटिंग रिसर्च का ये मतलब नहीं है कि हमें अपना व्यू बायस्ड करना है. सो द व्यू शुड नॉट बी बायस्ड, इट शुड बी न्यूट्रल. Third is network. So every researcher should make a good network with other researchers as well. आपने एक कंपनी की रिसर्च करी, आपके किसी फ्रेंड ने बिल्कुल वैसे ही दूसरी कंपनी की रिसर्च करी. आपने रिसर्च में पूरा 1 से 1.5 महीना लगाया, आपके फ्रेंड ने भी पूरा 1 से 1.5 महीना लगाया, एंड नाउ यू बोथ आर रेडी विद 2 डिफरेंट रिसर्चेस. अब अगर आप दोनों अपनी अपनी रिसर्चेस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो 1 महीने में
you have not covered one research but you have covered two researches. Both of you have covered two researches. ऐसे ही अगर आपका 10 लोगों का ग्रुप है तो यहाँ पे you 10 people have covered 10 researches in 1 month. बिकॉज उस एक महीने में आप 10 लोगों ने 10 अलग अलग कंपनीज को अप्रोच किया होगा और आपने खूब डिटेल रिसर्च करी है. तो 1 मंथ आप लोगों ने लगाया, लेकिन अब आपको 10 महीने और नहीं लगाने हैं बाकी की कंपनीज पे, आपको बाकी 10 लोगों से वो रिसर्च मिल जाएगी. बट द पॉइंट इज कि जो ये रिसर्च का नेटवर्क आपका है दैट शुड बी वेरी एप्ट. यहाँ पे सिर्फ जो लॉजिकल लोग हैं, सिर्फ जो ऐसे लोग हैं हु आर नॉट मिस यूजिंग एनी डेटा, हु आर एक्चुअली देयर एज द रिसर्चर, जो लोग बिल्कुल जेन्युइन रिसर्च कर रहे हैं और आपको मिसलीड नहीं कर रहे हैं. सो द नेटवर्क शुड बी बेस्ड अपॉन ऑल दीज रिसर्चर्स हु आर देयर इन द मार्केट एंड हु आर डूइंग गुड रिसर्च इन द मार्केट. तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए. देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, बट देयर इज अ कंडीशन अप्लाइड that the network should be of genuine researchers. Finally, there should be clarity of the questions. Questions में बहुत clarity होनी चाहिए. तो आप जब भी questions पूछते हैं related to company from the management, related to company from the clients, when you ask question to the employees, तो जब भी आप ये अलग अलग लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चंस बहुत क्लियर एंड बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए. सो अगेन रिपोर्टर्स का अगर हम एग्जांपल लें, सो दीज रिपोर्टर्स हैव दिस क्वालिटी that they ask the questions very relevant. So all the questions that they ask are very relevant and these are very clear and all the questions are point to point questions. बिल्कुल भी उसमें हम लोग ड्रैग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी उसमें एक्स्ट्रा मिर्ची मसाला नहीं लगाते हैं और वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होता है. तो वैसे ही क्वेश्चंस हमें भी पूछने एज अ रिसर्चर. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर विच अ रिसर्चर शुड हैव. Once the analysts are done with the research and the research report is prepared, they need to communicate their findings with the clients. तो फाइनली हमें क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है, बिकॉज रिसर्च बनाने का पर्पस ही ये है कि हम लोग क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाए. There are certain guidelines that an analyst should follow in their communication with the clients. Qualities of a research report. Now we are going to understand what are the qualities of the research report that we need to write. तो हम लोगों ने पहले पूरी रिसर्च करी, हमने कंपनी के बारे में समझा, हमने डेटा कलेक्ट किया. आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा एंड आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च वी विल कम्युनिकेट द रिसर्च इन द रिटन फॉर्म. तो जब हम लोग उस रिसर्च को रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं दैट इज नोन एज रिसर्च रिपोर्ट. तो वो रिसर्च रिपोर्ट की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग द कंपनीज टू देयर क्लाइंट्स. So the research should be realistic. The suggestion should be based on the facts and figures and not contain an optimistic, pessimistic based or biased view on the subject company. So जो भी suggestion हम लोग देंगे that should be based on facts and figures. तो यहाँ पे facts and figures involved होने चाहिए. यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगता है कि कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी इसलिए हमें शेयर खरीद लेना चाहिए. The research report should be supported by proper facts and figures. Like in this particular quarter, the company has gained the profit or the return which is 20% more than the last year's profit. तो company year on year profit भी कर रही है और profit को grow भी कर रही है. The profit is grown by 20% from the last quarter या from the last year. तो ये सारे data and ये सारे facts हमें disclose करने होंगे. So the complete research report should be fact based. सो कंपनी का रेवेन्यू कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी के सेल्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है. अगर ये बैंकिंग सेगमेंट है तो एनपीए कम हो रहा है या बढ़ रहा है. अगर ये रिटेल सेगमेंट है तो फुटफॉल्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है. सो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्री ड्राइवर्स फॉर एवरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो हमें ये सारे इंडस्ट्री ड्राइवर्स समझने होंगे, उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स में कन्वर्ट करना होगा, and then we will have to communicate the same in the research report. Second, the communication done through the written research report should be simple, clear and concise. तो हम लोग जो भी रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं है कि हमने बहुत सारी डिटेल्स लिख दी. ये एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए. इट शुड बी कॉन्साइज. यहाँ पे हमें बहुत सारे टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करनी जो लोगों को नहीं पता है. तो बहुत बार हम लोग रिसर्च में वी यूज़ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज एंड वी यूज़ वेरी टफ लैंग्वेज मैनी टाइम्स, बट देन विच इज़ नॉट easily understood by the end user.
बिकॉज हमारे जो एंड यूज़र हैं दे आर नॉट वेरी मच एक्वेंटेड विद द फाइनेंशियल टर्म्स. सो इस रीज़न से हमारे जो टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए या हमारे जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दैट शुड बी इन अ वेरी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज. If there is any conflict of interest, for example, the RA holds the shares of the subject companies. This should be informed and should be disclosed beforehand. तो अगर रिसर्चर के पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स हैं, ऐसा कोई भी आपको डिस्क्लोजर देना है या ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आपको बिफोर हैंड इन्फॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी CNBC आवाज़ देखोगे और वहाँ पे कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में वो कुछ भी बात करेंगे, so they give you the disclaimer, they give you this disclosure that the parent company of CNBC Awaaz, in the parent company of CNBC Awaaz, Reliance Industries is one of the biggest shareholders. तो इसीलिए वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज की तारीफ नहीं कर रहे. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड दैट इज वाई दे आर रिकमेंडिंग यू टू बाय द शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो कभी भी वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, सो दे विल ऑलवेज गिव यू द डिस्क्लोजर that this company is a biggest shareholder of the parent company of CNBC Awaaz. So if there is any such conflict of interest, you should disclose these things in prior and beforehand. For example, आपने अगर कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च की है और आपने अगर किसी एक कंपनी के बारे में ये बताया है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदो और आपने ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, सो ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत कम प्राइस से खरीदा है और अब आप अगर रिसर्च दे रहे हो, सो देयर विल बी मैनी पीपल हु वुड बी बाइंग दी शेयर्स, और जब इतने सारे लोग शेयर्स खरीदते तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा एंड देन यू विल बुक द प्रॉफिट एट दी टॉप. तो हो सकता है कि आप इस रीज़न से दे रहे हो. तो एंड यूजर्स को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने बोला है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदो और अगर आपने ऑलरेडी पोजिशन बना के रखी है, सो दिस शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हैंड. नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ देयर इज एनी assumption that should clearly be stated in the research report. तो अगर आप कोई भी assumption ले रहे हैं, लाइक कंपनी का प्रॉफिट आगे चल के इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीजन, सो दिस इज एन assumption, दिस हैज नॉट ऑलरेडी बीन हैपन. तो जो भी चीज़ आप लोग एज्यूम कर रहे हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि देयर इज नो फैक्ट एंड फिगर बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज जस्ट एन assumption. वी आर एज्यूमिंग कि इस पर्टिकुलर बैंक के NPA और नहीं बढ़ेंगे और ये बैंक का बैलेंस शीट वुड गेट स्ट्रॉन्गर. सो अगर आपका ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है और वो आपका सिर्फ एक assumption है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा. एब्रीविएशन जार्गन्स इफ यूज्ड शुड बी अवॉइडेड और एक्सप्लेन क्लियरली इन सिंपल वर्ड्स. तो अगर आपने कोई भी जार्गन यूज़ किया है, आपने इवन अकाउंटिंग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, लाइक आपने यूज़ किया है PAT, तो मैनी पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली PAT इज. अब अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं या अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो आपको पता होगा कि दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. बट अगर आप एक जनरल पर्सन या अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज की बात करें, सो यू शुड राइट इंस्टेड ऑफ पैट यू शुड राइट नेट प्रॉफिट. तो अगर आप नेट प्रॉफिट लिखोगे तो सामने वाले को समझ भी आएंगी चीज़ें कि हाँ हम लोग कंपनी के फाइनल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. अगर आप पैट लिखोगे तो पीपल वोंट अंडरस्टैंड. नेट प्रॉफिट इज समथिंग विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड द जार्गन्स, द टफ वर्ड्स, द एब्रीविएशंस, शॉर्टकट्स अगर कोई है, ये सारे हमें अवॉइड करने चाहिए. और अगर हमने लिखे हैं तो हमें उसे क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म. देन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट. लास्ट स्लाइड पे जो हमने देखा था, दीज वर द क्वालिटीज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट. सो द क्वालिटीज दैट आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट आर, The analyst should be good with numbers, because यहाँ पे आपको बहुत सारे calculations करने पड़ सकते हैं. There are many things that you will have to calculate. आपको कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे, आपको कंपनी का कैश फ्लो कैलकुलेट करना होगा, आपको प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, इन सब में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है. सो देयर आर मेनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट यू विल हैव टू डू, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी गुड विथ नंबर्स. सेकेंड, गुड विथ एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा एनालिटिकल टूल्स. सो ये डेटा एनालिटिकल टूल्स आपको हेल्प करेंगे फॉर द एनालिसिस पार्ट. जब भी आपको कंपेयर करना है कंपनी के पास्ट रिजल्ट्स को कंपनी के प्रेजेंट रिजल्ट से, या आपको कंपनी के फॉरकास्टिंग रिजल्ट्स बनाने हैं, या आपको अलग अलग कंपनीज के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है. सो वेन एवर देर इज अ डेटा एंड यू नीड टू एनालाइज द डेटा, सो वहाँ पे हमें एक्सेल, स्प्रेडशीट या डिफरेंट डेटा एनालिटिकल टूल्स बहुत ज़्यादा काम आता है.
So if we have good knowledge about these tools, it would be very helpful. थर्ड इज क्लियरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो हमें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स बैलेंस शीट के होते हैं, कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बिलोंग करती हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। तो इस मॉड्यूल में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। So every terminology which is used in the financial market, in the financial analysis, will be explained in this particular module of research analyst. Fourth point is ability to read and comprehend the financial statements and reports. So again, you should be able to understand the financial statements, you should be able to read these financial statements. आपको उसे comprehend करना आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीक होते जा रहे हैं। लाइक देयर आर मेनी कंपनीज जिनके शेयर प्राइस आज बहुत लोअर लेवल पे हैं, लेकिन उनके शेयर प्राइस एक दिन में लोअर लेवल पे नहीं गए, उनकी बैलेंस शीट बहुत सालों से वीक होती जा रही है। तो जब बैलेंस शीट वीक होती है, सो देयर आर मेनी सिग्नल्स विच यू गेट। तो कई बार आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी के असेट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो असेट रिसीवेबल के फॉर्म में बढ़ रहे हैं और कंपनी का कैश रिड्यूस होता जा रहा है, या कंपनी के करंट असेट्स आर रिड्यूसिंग एंड कंपनी के करंट लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग। तो उस कंडीशन में कंपनी का वर्किंग कैपिटल हैम्पर हो रहा है। सो देर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, और उन फैक्टर्स को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज एबिलिटी टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने रिपोर्टर्स का एग्जाम्पल देखा, तो जब आप एक रिपोर्टर की बात करेंगे तो एक रिपोर्टर बहुत एप्ट क्वेश्चन पूछता है। दे आस्क पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड। तो उनके अगर हमें आंसर्स मिलते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछना भी एक आर्ट होती है, और ये आर्ट एक रिसर्च एनालिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। देन अटेंशन टू डिटेल्स। सो बहुत बार कंपनी आपको बहुत सारी बातें बताएंगी, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स होंगे, कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉक्स होंगे। सो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सी डिटेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है और कैसे यूज़ करना है। सो ये सारे फैक्टर्स हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली कम्युनिकेशन स्किल्स। अ रिसर्चर शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एंड वर्बल। तो आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू विल हैव टू फॉर्म अ रिसर्च रिपोर्ट। आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट डिफरेंट पीपल, you will have to interact with different people, which can be the company's management, which can be the end users, which can be the employees of the company, to understand the future performance of the company. So that is it from this chapter. Let's solve some of the questions. ये बहुत easy सा chapter था, बहुत छोटा सा chapter था. So basically जो हमारा actual module है वो chapter number 2 से start होगा. This chapter was a basic introduction about the research analysis. तो रिसर्च एनालिस्ट को क्या करना होता है, उससे क्या एक्सपेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। ये चैप्टर पढ़ने का इंपॉर्टेंस ये था कि यू विल गेट टू नो दैट व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद द प्रोफाइल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। सो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे, आपको क्या क्या काम करने आने चाहिए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस प्रोफेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट। RAs are only involved in the analysis of data. RAs are involved in collection of data. RAs help their client to take informed decisions. RAs help in the financial planning of their client. So सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। जहाँ पे बात आ रही है तो ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम होता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड नॉट द रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है टू कलेक्ट द डेटा, to analyze the data and to take informed decision from these researches. तो जहाँ पे ये ओनली टर्म आ गए हैं, अब सही तो तीनों ऑप्शन है, लेकिन जहाँ पे ओनली टर्म आ गए तो ओनली एनालिसिस तो नहीं करना होता है, ओनली कलेक्शन भी नहीं करना होता है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो जो नियर आंसर्स हैं, और जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है उसको आप
सिलेक्ट कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, RAs हेल्प देयर क्लाइंट्स टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लेंगे वो लोग? बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड बाय एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। Second question, analysis and decision making, the two imperative parameters involved in, are affected by which of the following factors? Management ethics, revenue and cost, efficiency of operations, या all of the above. So basically हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं और जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है दिस एक्चुअली शुड बी आस्क्ड आफ्टर वी अंडरस्टैंड दी कंपनी एनालिसिस, बिकॉज हम लोग जब भी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये दो पैरामीटर्स पे करते हैं। वन इज क्वालिटी ऑफ द कंपनी एंड वन इज क्वांटिटी पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी। तो क्वालिटी का मतलब है कि मैनेजमेंट के एथिक्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रोसेस है वर्क करने का, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। तो ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। देन देर आर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, लाइक कितना प्रॉफिट कंपनी कर रही है, कितना कॉस्ट कंपनी को लग रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कितनी एफिशिएंसी के साथ कंपनी वर्क कर रही है। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं एंड वी मेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, वी टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, तो ये इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं हम लोग। सो मैनेजमेंट एथिक्स इज द क्वालिटेटिव फैक्टर, revenues and cost are the quantitative factors, efficiency is again a quantitative factors। तो ये तीनों फैक्टर्स को हमें देखना होगा। सो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, द सेल साइड एनालिस्ट generally work for the money managers like the mutual funds, hedge funds, portfolio managers who purchase and sell the securities for their own investment accounts or on the behalf of their clients, state whether true or false। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होती है बाय साइड एनालिस्ट और एक होते हैं सेल साइड एनालिस्ट। ये जो बाय साइड एनालिस्ट होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए वर्क करते हैं, और जो सेल साइड एनालिस्ट होते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा गया है। सो ये बाय साइड एनालिस्ट होते हैं, ना कि सेल साइड एनालिस्ट, एंड क्वेश्चन में दिया है सेल साइड एनालिस्ट, दैट इज वाई द आंसर इज फॉल्स। अगर ये सेल साइड की जगह बाय साइड लिखा होता सो द आंसर वुड हैव बीन ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, which of these qualities are desired in a good research analyst? Knack for numbers and interpretation, clarity in financial concepts, ability to read and understand financial statements। So basically ये सारी ही qualities हैं which you will expect from any good researcher। So the answer should be all of the above। So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर्स इन दिस मॉड्यूल। बाकी चैप्टर्स बहुत डिटेल्ड हैं एंड बाकी चैप्टर के वीडियोस विल बी वेरी डिटेल्ड एंड वेरी लॉन्ग। सो यूजुअली हमने सारे चैप्टर्स को 4 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया है बिकॉज इट्स टफ टू कवर वन पर्टिकुलर चैप्टर इन वन वीडियो। सो ऑल द चैप्टर्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट वीडियोस एंड एवरी वीडियो विल वेरी फ्रॉम 40 minutes to 1 hour। So this is how we have made different video lectures। We provide the live lecture training as well, so you can contact us in case you have any doubts, any confusion that you need to ask। So we provide the video lectures in which you will get all the different concepts covered। जितने भी टॉपिक्स आपको मॉड्यूल में दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे concepts हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बट दीज आर नॉट कवर्ड इन द बुक। हम लोग उन्हें कई बार आउट ऑफ द सिलेबस कंसिडर करते हैं। सो इवन दीज आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज। तो आप जब भी वीडियो लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे या आप अगर हमारी लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं, सो ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वुड बी कवर्ड, एंड जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे आपको कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दी स्टडीज वी ऑल्सो प्रोवाइड द क्वेश्चन बैंक। तो यू विल गेट 500 क्वेश्चंस विच आर दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एंड वी वुड डिस्कस हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आप एक करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। लाइक कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, कुछ क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन का प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया है। द कंप्लीट वीडियोज विच यू विल गेट एंड द लाइव लेक्चर्स वुड कंटेन द अपडेटेड सिलेबस।
So all the video lectures that you would get would be updated to the latest version. You will also get one-to-one doubt clearing session with expert faculties. We also provide the chapter summary of all the chapters for the last moment revision, and you will get the support until you clear the examination. So you can get this complete package of NISM 15 video lectures at a very nominal price. So you can get back to us at 888-930-2230, or you can also visit us at www.nisminstitute.com. Thank you.